Hi dear students, how are you all? Hope you are safe and fit at your home. I hope you have purchased your book set. Those who have not purchased, I request them to purchase as soon as possible. Most of the students are doing their work very regularly, but still some students are there, those who are not sending. So please students, be regular with your work so that you can be able to understand the concept clearly. So let us start our today's video. My dear student, let us start our today's video from the chapter Fish Tale. There is one question related to the setup of fish factory. What amount we require to set up a fish factory? Let us discuss the cost to set up a factory. Beta ji, Florama wants to set up a factory and the items required to set up a factory are written here. What are the items required to set up a factory? Borewell, bamboo rack, cement rack, tray and knife and bucket. Now the price for each item is given here and the quantity in which amount we are required these items. We have to calculate how much amount we have to with us so that we are able to set up a fish factory. Let us calculate the amount to set up a factory. Borewell, beta ji, we will calculate one by one. Borewell rupees 3000. 3000 is required for one borewell. How much we required? We required only one borewell. So what will be the amount for the borewell? 3000 multiply with 1, we get amount 3000. How much we have to require? 3000 rupees for borewell. Now for bamboo rack, rupees 2000. One bamboo rack cost rupees 2000, but in quantity how much we are required? We are required 20. And to calculate the amount, what we have to do, we have to multiply the price and the quantity. तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो उसकी एक बैम्बू रैक की कॉस्ट है उसको उसकी नंबर ऑफ क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे. It is so easy to multiply this number. First of all, you will calculate how many zeros are there. 1, 2, 3 and 4. So in answer, how many zeros will be there? 4 zeros will be there. 1, 2, 3 and 4. 2 2s 4. So we required 40,000 rupees for bamboo rack. Cement rack 1000. Quantity is 4. So to calculate total quantity, what we have to do? We have to multiply. 1000 multiply with 4, we get how much rupees? 4000. How much rupees? 4000. Tray and knife 300, but quantity is 20. Quantity is 20. So we will calculate how much rupees. How many zeros are there? 3 zeros are there and 3 2 6. So required 6000 rupees. Bucket is for rupees 75, but how many buckets we will require? 20 buckets. 75 twos is 150 and 1 zero is also there. So we required 1500 rupees for buckets. Now to calculate the total amount for factory setup, what we have to do? We have to sum up all these amounts of the each item. Let us calculate 0, 0 and 5. 6 plus 4 is 10. 10 plus 3, 13 plus 1, 14. 1 carry over here. 4 plus 1 is 5. So we required 54,500 rupees. How much amount we required? 54,500 rupees to set up a fish factory. Now beta ji, after set up a fish factory, we have to calculate how much earning Florama will get. When fish dried, it becomes 1/3 of its weight. हमें क्या कहा गया है कि जब भी हम किसी भी फिश को ड्राई करते हैं, सुखाते हैं, एक तो फ्रेश फिश होती है जो हमें सी से मिलती है, एक हम उसको ड्राई करते हैं बेचने के लिए, तो उसका वेट कितना हो जाता है बेटा जी? 1/3 होता है उसके ओरिजिनल वेट से. सपोज अगर हमारी फिश 3 kg की है, तो जब हम उसको सुखा देंगे तो वो कितने की रह जाएगी? 3 kg की हमारी ओरिजिनल फिश थी, तो जब हमने उसको 1/3 किया 3 kg से, तो वो कितने की रह गई? 1 kg की. कैसे रही देखिएगा. ये क्या है? 3 क्या है? 3 is in denominator. 3 is in denominator. Denominator means we have to divide the whole into how many parts? 3 parts. When we divide 3 kg into 3 parts, how much we will get? 1 kg. So after drawing a 3 kg fish, how much will left with us? 1 kg fish. ठीक है. If they dry 6000 kg fish, how much they get in 1 month? अगर फ्लोरम्मा 6000 kg फिश को ड्राई करती है एक मंथ में, तो उसको एक मंथ में कितनी ड्राइड फिश मिलेगी? कितनी ड्राइड फिश मिलेगी? अब ध्यान दीजिएगा, 6000 फ्रेश फिश को वो पूरे मंथ में ड्राई करते हैं.
हमें पता है कि जब ड्राई करते हैं तो वो उसका कितना रह जाता है, 1/3 रह जाता है। तो यहाँ पे हमें 6000 को कितने टुकड़ों में बांटना है बेटा जी, 3 टुकड़ों में बांटना है। D for डिनोमिनेटर, D for डिवाइड। व्हेन वी विल डिवाइड 6000 by 3, how much we will get? 3 ones 3 and 3 to 6000 remains 1000. 2000 multiplies 1 is equals to 2000 kg। यानी कि अगर हम 6000 फिश को ड्राई करते हैं तो हमें एक मंथ में कितनी केजी फिश मिलती है, 2000 kg फिश मिलती है। Now there is a rate to buy a fresh fish we have to pay 15 rupees per kg, and to sell a dried fish we have to pay rupees 70 per kg। अगर हम फ्रेश फिश को खरीदने जाते हैं तो हमें कितने रुपए देने हैं पर केजी, 15। और अगर हम ड्राई करने के बाद उस फिश को बेचने जाते हैं तो वी हैव टू पे रुपीज 70 पर केजी। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं हाउ मच विल बी द अर्निंग ऑफ फ्लोरामा आफ्टर सेलिंग 6000 kg ड्राई फ्रेश फिश। वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश टू गेट हाउ मच ड्राइड फिश। अगर हम 6 kg ड्राई फिश करते हैं, यानी कि हमने खरीदी सबसे पहले 6 kg फ्रेश फिश, फिर हमने उसको ड्राई किया तो हमें कितनी मिलेगी, 1/3 मिलेगी उसकी। 1/3 किया तो कितना मिला, 2 ones 2, यानी कि हमें कितनी केजी फिश मिली ड्राइड, 2 kg dried fish we will get after drying 6 kg fresh fish. For 6 kg fresh fish we have to pay how much? हमें जब हम मार्केट से 6 kg फ्रेश फिश लेने गए तो हमने कितने पे किए थे उसको, हमें पता है फ्रेश फिश खरीदने के लिए हमें कितने पे करने पड़ते हैं, 15। तो अगर हमने 6 kg फ्रेश फिश खरीदी है तो हमें कितने पे करने गए, 6 × 15, दैट इज वी हैव टू पे रुपीज 90 फॉर फ्रेश फिश। दिस इज फॉर बेटा जी फ्रेश फिश। अब हमने जब फ्रेश फिश को सुखाया था तो ड्राई किया था तो हमें कितनी ड्राइड फिश मिली थी, 2 kg। सो ऑन सेलिंग 2 kg ड्राइड फिश वी गेट हाउ मच। ड्राइड फिश का क्या रेट था सेलिंग का बेटा जी, 70 kg। हमने कितनी सेल की है, 2 kg। सो टू कैलकुलेट द अमाउंट वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 with 70। व्हेन वी मल्टीप्लाई वी गेट हाउ मच, 140 रुपीज। यानी कि हम खरीद के तो 6 kg को 90 में लाए थे, लेकिन जब हमने उसको बेचा तो वो सिर्फ 2 kg रही, लेकिन हमारी सेलिंग प्राइस ज्यादा हो गई। क्यों हो गई ज्यादा, क्योंकि सेलिंग प्राइस ऑफ ड्राइड फिश क्या थी, 70, और फ्रेश फिश की कीमत कितनी थी, सिर्फ 15 रुपीज। सो वी अर्न ऑन 6 kg फ्रेश फिश। तो हमें 6 kg फ्रेश फिश पे कितनी अर्निंग मिलेगी, हमने कितने में बेची थी, वो 140 में, लेकिन खरीदी कितने में थी, सिर्फ 90 रुपीज में। तो हमें कितने रुपीज का प्रॉफिट हुआ, हमें 50 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 50 रुपीज का, क्योंकि हमने बेची 140 पे, खरीदी 90 पे, तो हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 50 रुपीज का प्रॉफिट। और ये 50 रुपीज का प्रॉफिट हमें कितने पे हो रहा था बेटा जी, 6 kg फ्रेश फिश पे। कितने पे हो रहा था, 6 kg पे। लेकिन इन मंथ फ्लोरामा कितने kg को ड्राई करती है, 6000 को ड्राई करती है। कितने को करती है, 6000 को। अगर 6 kg पे 50 का है तो 6000 पे कितने का हो जाएगा, 50 × with 1000, दैट इज 50,000 रुपीज जो है फ्लोरामा की अर्निंग होगी। होप यू हैव अंडरस्टूड the cost to set up a factory and what are the earnings after drying 6000 kg fresh fish by Florama. So after calculating the total amount for set up the factory and how much they will earn, Jhansi said that we required 1500, that is 1500 kg salt for 6000 kg fish and the cost of salt is ₹2 per kg। झांसी कहती है कि जब हमें अर्निंग का भी पता लग चुका है, फैक्ट्री सेटअप का भी अमाउंट पता लग चुका है, तो हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें ड्राई फिश को बेचने के लिए कितनी अमाउंट लगेगी। So let us calculate how much amount they required for drying and selling the fish। उन्हें 6000 फिश को ड्राई करने के लिए कितने सॉल्ट की ज़रूरत पड़ती है, डियर स्टूडेंट्स, 1500 kg की। और सॉल्ट की कॉस्ट कितनी है, ₹2 kg पर kg। सो मंथली कॉस्ट फॉर द सॉल्ट कितनी हो जाएगी, अगर मंथली में वो 6000 ही ड्राई करते हैं फिश, और फिश को ड्राई करने के लिए कितना kg सॉल्ट चाहिए, 1500, तो कितने रुपए खर्च होंगे उनके सॉल्ट पे, उनके रुपीज़ स्पेंड होंगे 3000 रुपीज़। कितने स्पेंड होते हैं उनके,
फिश को ड्राई करने में ₹3000। फिर पैकेजिंग और जो बस सर्विसेज है उनके आगे सप्लाई करने के लिए, उसके लिए कितने रुपीस लगते हैं उनके, अगेन ₹3000। तो उनकी मंथली कॉस्ट क्या हो जाती है, ड्राइंग और सेलिंग द फिश। ये तो ड्राई करने के लिए सॉल्ट चाहिए था उनको, और बेचने के लिए बस और पैकेजिंग सर्विसेज चाहिए। तो जब उन दोनों को हम सम अप करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि 6000 kg फिश को जब वो ड्राई करते हैं तो उनका कितना खर्चा लगता है, उनकी मंथली कॉस्ट क्या होती है ड्राइंग और सेलिंग की। तो 3000 प्लस 3000, हाउ मच विल बी द कॉस्ट ऑफ ड्राइंग एंड सेलिंग द फिश इज ₹6000. How much it will cost? ₹6000. And we have already studied that Florama, when calculate how much earning will be there for 6000 kg fish, earning is, what is the earning? Earning is ₹50,000 as 6 kg fish पे उसे अर्निंग कितनी होती है उन्हें, 50 रुपीज़ की। तो 6000 पे कितनी हो जाएंगी, 50 × 1000, दैट इज अर्निंग इज ₹50,000। और कॉस्ट ऑफ ड्राइंग कितनी हो जाएंगी, 6000। तो उनके बैंक को कितनी बचत होगी, ₹44,000। सो द अर्निंग ऑफ द बैंक विल बी ₹44,000। यानी कि उनकी सारी अर्निंग मिलाकर और उसमें से खर्चा निकालकर उन सब फिशर वुमेन्स को कितने रुपए बचेंगे, ₹44,000 एज देयर सैलरी और एज देयर अर्निंग इन देयर सेविंग बैंक। You have understood how to set up a factory and what is the total earning of the fisher woman after selling and drying the 6000 kg fish.